ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उसके फैसले के बाद इन्होंने एक दो जगह अपना उनके साथ संबंध का इसमें जिक्र किया है कि भाई भगत सिंह के बारे में वो लिख रहे हैं कि भगत सिंह के साथ रहना है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मेरा मकसद इस बायोग्राफी को ढूंढना नहीं था, मेरा मकसद जितना भी भगत सिंह के ऊपर लिखा गया है रेवोल्यूशनरी लिटरेचर उस सबको ढूंढना था। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 2017 में गई, 18 में वापस आई और 19 में गई, लेकिन हफ्तों तक तो कुछ मिला नहीं मुझे उस लिटरेचर में, और फिर मिला तो ऐसी नायाब चीज़ भी मिल गई और भी बहुत सारा मिला है। मैं ये नहीं कर सकती दावा कि भाई मैंने सारा ढूंढ लिया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मोटा मोटा मैंने छान लिया है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ 47 ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ये कहो कि मान लिया मैं कहूँ कि भाई मैंने 500 रचनाएं काव्य रचनाएं ढूंढ ली हैं, तो हमारे पास 20-30 तो होंगी, यहाँ 40 भी होंगी, मैं कह नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਵੰਤੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੰਤੀ ਮਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। जी बहुत शुक्रिया। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? भगत सिंह के जेल के साथी एक पहले जितेंद्र नाथ सान्याल ने बायोग्राफी भगत सिंह के ऊपर लिखी थी, और एक ये इस जो अभी मैं साझा कर रही हूँ आपके साथ, ये बायोग्राफी भी लिखी गई थी CS वेणु, जो उनके तमिल साथी थे और सह कैदी थे, माने उनके साथ को प्रिजनर थे। तो जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उसके फैसले के बाद इन्होंने एक दो जगह अपना उनके साथ संबंध का इसमें जिक्र किया है कि भाई भगत सिंह के बारे में वो लिख रहे हैं कि भगत सिंह के साथ रहना है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि ऐसे आदमी, ऐसी जीवात्मा के साथ रहना क्या होता है। मैं सिर्फ इसका एहसास कर सकता हूँ, इसको महसूस कर सकता हूँ, मैं शब्द नहीं दे सकता, ये उसका कहना है। और उन्होंने उनकी फांसी के बाद ये बायोग्राफी लिखी उनकी, जो मद्रास से छपी और मद्रास से जब्त कर ली गई ब्रितानी हुकूमत ने, और ये मुझे हासिल हुई इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से। मेरी 3-4 साल से मैं दो तीन विजिट हुई मेरी, तो मुझे वहाँ से हासिल हुई। और मूल रूप में ये अंग्रेजी में थी, तो मूल रूप में अंग्रेजी को मैंने इसको एडिट किया है और हिंदी में भी इसको अनुवाद किया है। कितने ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ? मैनू नहीं पता सी कि बायोग्राफी लिखी हुई है भगत सिंह के ऊपर। मैं जितना भी जब्त साहित्य है मैं उसको सारे को ढूंढना था। मेरा मकसद इस बायोग्राफी को ढूंढना नहीं था। मेरा मकसद जितना भी भगत सिंह के ऊपर लिखा गया है रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, उस सबको ढूंढना था। उसमें ये भी मिली। तो ये तो मुझे नहीं मालूम था कि CS वेणु की कैटलॉग में ज़रूर था कि CS वेणु की ऐसे ऐसे एक कैटलॉग उनके में मिला था, पर मुझे नहीं मिला था कि मैं इसको हासिल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद तो सारे ही रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को खोजना मेरा मकसद था। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 2017 में गई, 18 में वापस आई और 19 में गई, लेकिन हफ्तों तक तो कुछ मिला नहीं मुझे उस लिटरेचर में। और फिर मिला तो ऐसी नायाब चीज़ भी मिल गई और भी बहुत सारा मिला है जो अगली किताब में मैं लेके आऊँगी। तो ये तो शायद भगत सिंह की साल 17 से करवा लिया ये काम। 17 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਰਿਕਾर्डिंग गई सी का और कोई लिटरेचर? मैं सारा रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को लब रही थी, सारा रेवोल्यूशनरी का कि इन्होंने जब्त क्या क्या किया गया है, मैं उस सारे को देखना चाह रही थी। चाहे वो जलियांवाले बाग का हो, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, भगत सिंह और मैंने क्रांतिकारी का मतलब इन्हीं का रिकॉर्ड। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिसने पूरे जलियांवाला बाग और इनकी फांसी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की, इन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। और हर भाषा, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कनारी, बंगाली, सिंधी, उर्दू, हर भाषा में लिखा गया था। तो ये मेरा तो कोशिश ये थी कि अंग्रेजी और हिंदी की को ढूंढूं, क्योंकि हिंदी में कोई ज़्यादा आया नहीं है रेवोल्यूशनरीज का जो जब्त साहित्य है वो आया नहीं था। तो मेरा मकसद तो उसको खोजना था और उसमें मुझे ये चीज़ भी मिल गई। और वो जितेंद्र नाथ सान्याल वाली भी बायोग्राफी मैंने खोज ली थी, लेकिन क्योंकि वो पहले छप चुकी है इसलिए मैंने उसको नहीं, ये हमारे सामने अभी तक पाठकों के सामने या हिस्टोरियन के सामने या रिसर्चर्स के सामने नहीं आई थी। तो ये इस पे मैंने सबसे पहले छापने का किया। ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ? भगत सिंह के सैकड़ों से ज़्यादा किताबें हैं जो रेवोल्यूशनरी से हैं, और सारी भाषाओं का मिला दे तो काफ़ी हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक खोज पाई हूँ अभी काफ़ी कुछ है जो मैंने लिया है, अगली किताब की उस पर बात करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ है जो मुझे हासिल हुआ है वहाँ से। और मैं ये नहीं कर सकती दावा कि भाई मैंने सारा ढूंढ लिया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मोटा मोटा मैंने छान लिया है उनका। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ? बिल्कुल, जो प्रतिबंधित साहित्य है ना वो जब्त क्यों करते थे, क्यों वो प्रतिबंध लगाते थे? क्योंकि उनके अगेंस्ट था। किसानों की बात यहाँ करते हैं, मजदूरों की बात यहाँ करते हैं, यहाँ उनके अत्याचार की बात करते हैं, यहाँ उनके सारे जुल्म सितम की बात करते हैं, यहाँ आज़ाद होने की तमन्ना को जाहिर करते हैं। सब चीज़ें हैं इस रिकॉर्ड में, लेकिन ये है कि ये सामने आया नहीं है, इसलिए हम उसका इवेल्युएशन, उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे। तो ये अब आ रहा है सामने, तो होगा इस पे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ 47 ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? कुछ एक का थोड़ा बहुत पता है कुछ, लेकिन ये कहो कि मान लिया मैं कहूँ कि भाई मैंने 500 काव्य रचनाएं ढूंढ लिए हैं, तो हमारे पास 20-30 तो होंगी, यहाँ 40 भी होंगी, मैं कह नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ उसका 5-10% होगा यहाँ, तो वो बाकी मैं दे दूंगी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने वालों दे दूंगी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਥੀ।
देखो, जेल के साथी ने उनके परिवार की, खानदान की बात की है, क्योंकि ये ऐसा खानदान है कि पिता भी उतने ही महान हैं, उनके चाचा भी उतने ही महान हैं, सारे मने लाला लाजपत राय के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। ये सारे लोग इतने महान हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इनके पिता भी लगता था कि एक ज़माने में ये लगता था कि कोई भी बेटा कितना ही प्रतिभाशाली हो लेकिन शायद अपने बाप की बराबरी ना करे। ये दूसरी बात है कि इनकी इतनी अनपैरेलल्ड सेक्रीफाइस रही है कि उसने सारे ही क्रांतिकारियों को एक तरह से वो कर दिया, मतलब उनसे नीचे ही कर दिया। उनका इतना अनपैरेलल्ड सेक्रीफाइस है भगत सिंह का तो। और बाकी इसमें वो कई जगह अपनी बात करते हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि उनकी जो अपील करी गई थी प्रीवी काउंसिल में, उसकी बहस इसके अंदर मौजूद है कि भाई वो एक वहाँ के ब्रिटिश लॉयर थे प्रेट, वो बहस अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी, वो इस किताब में है। कहते मैं सोच नहीं सकता कि इतना, मैं एक जिंदा दार्शनिक से बात कर रहा हूँ। तो कहते आप इतने उत्साहित? हाँ, कहते मैं उसी तरह उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरे लिए क्या है और मैं जानना चाहता हूँ कि अगली दुनिया में मेरे लिए क्या रखा है। तो ये इतने महान लोग थे, क्या कहूँ। अच्छा, भगत सिंह की फांसी तो किन्ने क समय बाद जिहड़ी है बायोग्राफी लिखी गई सी ते जब्त कदों हो गई सी? ये भगत सिंह को फांसी हुई आज के दिन 23 मार्च को 1931 को, और ये लिखी गई और छपी। ये तो कोई देखो ना, तो उस टाइम पे पब्लिशर का नाम था, लेकिन हाँ ये है कि उसने एक मद्रास का पता दे रखा है, जिससे हम ये कहते हैं कि ये मद्रास से छपी है। और ये वहाँ 12 नवंबर 1931 को ब्रिटिश म्यूजियम में ये दर्ज कर ली गई, और उसके बाद तो वो तालाबंद करके रखी गई है। 1970 के आसपास खोली गई है, 67-68 के दौरान खोली गई है। उससे पहले ये जब्त साहित्य नहीं खोला गया था। मैम, ਇਹ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त ही कर लिया रिकॉर्ड? बहुत सारा यहाँ से करते हैं, सारी जितनी भी ब्रिटिश के खिलाफ थी वो सारी ही जब्त की जाती थी। इसमें कोई खास नहीं, हजारों पब्लिकेशन हैं जो जब्त हुई है। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾर्ड हैगा, सानू भेजो? मेरे ख्याल से तो इस तरह का तो सरकारों को नहीं है फुर्सत इसमें, क्योंकि सरकारों की तरफ से कोशिश की जाती होगी। मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देती हूँ। अपनी सरकारों के बारे में ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहती, लेकिन हाँ एक प्रयास की बात करती हूँ कि एक हिंदी के निर्मल वर्मा हैं, शायद आप जानते होंगे। उन्होंने एक सागा ग्रंथ हैं जो आयरलैंड के अपने पांडुलिपियाँ मानी जाती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मानी जाती हैं। वो एक बार डेनमार्क वाले ले गए थे, तो उनको उन्होंने इतना प्रेशराइज कर दिया उनको कि भाई हमारे ग्रंथ ले गए हमारे, और आखिर उनको तंग आके वो ग्रंथ लौटाने पड़े। तो साहित्य के प्रति लोगों का ऐसा रुझान दुनिया में होता है जो कि होना चाहिए, तभी ये रिसर्च आएगी। अब क्या पता जब हमारा इतना ले गया और हम चुपचाप बैठे हैं तो अब उसमें क्या कहें। जब जैसे सामने आते हैं हम तो अपने समझो सीमित साधनों से एक उसकी तरह करते हैं, रिसर्चर हैं तो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या क्या लेके गए हैं। मैंने तो एक पीछे थेम्स तरल इतिहास करके यात्रा वृत्तांत में काफ़ी कुछ दिया है कि हमारा क्या क्या वहाँ गया हुआ है। मैम, हजे तक भगत सिंह ने शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। हाँ, ये त्रासदी है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इतनी त्रासद स्थिति है कि आज के तारीख में अगर हम कहें कि भगत सिंह के अलावा कोई नवयुवक या नौजवान बता सकते हैं कि आप किसको अपना आइकॉन मानोगे, बता सकते हो कोई नाम है? भगत सिंह के अलावा आपको कोई नाम दिखाई देता है? किसी को नहीं दिखता भगत सिंह के अलावा। सवाल रह गया मैम, अक्सर ही जिक्र ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਨਾ ਖੋਲੂਗਾ, ਉਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ उस पेज ਦਾ? इसमें तो मुझे नहीं मिला। बहुत सारी बातें हैं जो भगत सिंह का नाम लेके चलती हैं, तो जब तक हमें ओरिजिनल सोर्सेज पे विश्वास करना चाहिए। मैं तो क्योंकि आर्काइव्स में रही हूँ, आर्काइव्स की डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुई हूँ हरियाणा की, तो मैं तो
ये है कि ओरिजिनल सोर्स अगर मिलता है तो मैं उस पर बात करती हूँ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। अब तो और फ्री होगी हूँ मैं, और जारी रहेगा। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? लोगों ਨੂੰ ये कहना चाहूँगी कि खास तौर से भगत सिंह की आइडियोलॉजी को पहचाने सरकारें भी और हुकूमत भी, और सिर्फ शब्द बाणों से तो कुछ नहीं होने वाला, उसकी आइडियोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो दुनिया में ऐसे ही भगत सिंह नहीं है, वो एक दार्शनिक क्रांतिकारी है, दार्शनिक। मैंने जो 24 साल का नहीं हुआ और उस उम्र में वो जो क्रांति के दर्शन को स्थापित करके गया है वो अनपैरेलल्ड है। कोई उसका दूसरा। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਵਾਲਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ न विचारधारा पे देखो, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि वो ना लगाएं, शायद कहीं ना कहीं 1% उनके अंदर होगा कि भगत सिंह को वो रेवर करते ਕਿਤੇ हैं, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ याद ਨਾਲ तो करते हैं ना, और कहीं ना कहीं एक सम्मान की भावना रखते हैं तभी हम करते हैं। तो मैं तो उसको बिल्कुल तो नहीं खारिज करूँगी, लेकिन हाँ ये है कि उनके बारे में जितना कुछ मिलता है ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ें और जब महसूस करें। और ये किताब ਇਹ तो ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने अमेजोन पे दिखा दो एक बार। ये अमेजोन पे अवेलेबल है और बहुत सस्ती है। मैंने उसको कहा था कि भाई इस किताब की कीमत ऐसी रखें, और उन्होंने ये पब्लिशर का है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने छापी है, उन्होंने आज के दिन तो 110 रुपए की किताब कर रखी है। तो मैं उसको भी धन्यवाद। केड़ी लैंग्वेज ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਮ? इंग्लिश और हिंदी में, पंजाबी में भी करवा रही हूँ मैं इसको, तमिल में भी करवाऊंगी। मेरी कोशिश है सब भाषाओं में हो जाए, अच्छा है, क्योंकि ये एक तरह के नेशनल हीरो क्या, ये वर्ल्ड हीरो हैं। थैंक यू मैम ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू कमलदीप, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੰਦਾ। थैंक यू कमल। ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਵੰਤੀ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ 47 ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।